Whenever we think about Rajasthan, the very common things that come to our mind are deserts, and then Rajasthani foods like dal bati churma, and of course, the forts of Rajasthan. In today's video, we would like to take you to one such fort called the Fort of the Sun. Any guesses which fort I am referring to? Yes, I am talking about Mehrangarh Fort of Jodhpur. It was 1459. The chief of Rathod clan named Rao Jodha understood that he needs to shift his capital of Marwar from Mando to somewhere else, ideally on a hilltop, to defend in a better way. He has decided to shift his capital to Jodhpur, which is also named after him. He started building his fort named Mehrangarh Fort, which also means the Fort of the Sun. With a very determined mind, he sent out orders to his people to execute his will by first removing the people who were living on the hill and then built the foundation of his dream fort. Everyone agreed to him except one old man who was a saint, who was also known as Chidiyawale Baba. He was majorly upset by the king's mandates. The saintly man cursed a monarch that his kingdom would be inflicted by repeated droughts if he built the palace of his dreams on the hill. Shocked and afraid after hearing the terrible curse, the king surrendered himself at the feet of saint called Chidiyawale Baba and sought forgiveness. The saint was unable to take his words back. He said to the king that one and only solution to neutralize the curse would be someone from the kingdom has to lay down his life by willfully getting buried alive. When the king failed to find a savior amongst his subjects, a noble-minded man named Rajaram Meghwal came forward to sacrifice his life. And thus, Rajaram Meghwal was buried alive on an auspicious day and at an auspicious spot so that the foundation of Mehrangarh Fort could be laid down. This was year 1459. So today, let's go inside and see why this fort is so important to the travelers. The guide charge here is 500 rupees for the two people, and I'm up to 4 people. So let's go. He is our guide for the day. So we also have a elevator options for which we need to pay 50 rupees per head. This is the place where you need to stand to get into the elevator. Once you come out of the elevator, you would be reaching this place. From this place, you can get entry into the Fort of the Sun or Mehrangarh Fort. Let's go inside, friends. Let's see the amazing piece of work what is waiting for us. And now we are inside the palace and see what an amazing piece of work. This place is made of red sandstone. राजा भी यूज़ कर रहे हैं, रानी भी यूज़ कर रहे हैं। अभी आप बोलेंगे राजस्थान में पर्दा तो कर ही नहीं रही महारानी, पहले पर्दा होता ही नहीं था यहाँ मुगल वगैरह आए, मुगलों ने अटैक किया, तब ये पर्दा सिस्टम शुरू किया गया। अब कई लोग बोलते हैं मुगल आर्किटेक्चर, अरे मुगल आर्किटेक्चर कहाँ से था? वो तो चोर थे, लुटेरे थे। और ये राजा की प्रिंसेस के लिए होता था, बड़ी प्रिंसेस आगे बैठती थी, फिर उनकी सर्वेंट पीछे बैठती थी और उम्ब्रेला जिसमें येलो कलर के सोने के धागे और ब्लैक कलर के चांदी था उसमें। जब भी हमारे देश में जो राज किया है जैसे मुगलों ने, उसका कारण क्या है कि उन्होंने राजपूतों को बांट दिया है। पहले हमारे नाम के पीछे कभी सिंह नहीं लगता था, एक टाइटल होता था देव यानी मेल और देवी यानी फीमेल। तो अकबर ने बीरबल से कहा अपने दरबार में कि राजपूतों से युद्ध कर देते। उन्होंने कहा कि राजपूतों से युद्ध में जीतना असंभव है क्योंकि वो अपने एक कण कण के लिए युद्ध करते हैं। तो फिर उन्होंने एक टाइटल दे दिया सिंह। सिंह के चक्कर में कि मैं स्वयं करीब सबसे ऊपर हूँ और दूसरा भाई बोला मैं भी सबसे ऊपर हूँ। तब से ये सिंह की उपलब्धि होगी। और यहाँ पर एक टाइटल दिया गया महाराजा। महाराजा को टाइटल दिया था शाहजहां ने दिया था। शाहजहां ने एक राजा थे जसवंत सिंह उनको टाइटल दिया था। ये टाइटल दिया जाता है। और मुंबई के जो राजा हैं
हमने ग्रैंड की जो हमने सब किया पालक के इसको फ्रंट में होते पालक के ये बोलते थे डोली और डोला फीमेल के लिए डोला राजा के लिए। जैसे ये राजा हम देखते हैं ये आपका पौधा है लकड़ी के अंदर चांदी का काम किया गया और राजा के जो फ्रेंड्स होते हैं उनके लिए दोस्तों के लिए ये राजा शिकार करने जाते थे शिकार के लिए यूज़ करते थे सामने वाले। This particular one was used to hunt rabbit. Isn't it amazing? सबसे सुंदर अच्छा पौधा है इसका उपयोग राजा करते थे। यहाँ पे एक राजा थे जिनका नाम था अभय सिंह ने हैदराबाद पर दिल्ली पर अटैक किया। ये राजा का चौका है। খেলনা খেলনা দেখে নাও দেখি একটু সাইড সাইড প্লিজ দেখো দেখো খেলনা এগুলো বাচ্চারা খেলতো हाँ, राजस्थान की लेडीज ज्वेलरी यूज़ करती है राजस्थान की जो लेडीज़ होते हैं वो बहुत हेवी ज्वेलरीज यूज़ करती हैं। और কয়েন কালেকশন बेटा बेटा কয়েন নাম্বার কয়েন কালেকশন वेरी हेवी आगे वाला अपने करना इसमें राजा रानी होली खेल रहे हैं होली की इसमें राजा रानी बैठे टेंट लगा हुआ है। ये बताइए यहाँ पे तो ये वाले किला में कौन सा राजा रहता था? उदय सिंह। इसमें 40 राजाओं ने शासन किया। 40 राजा ने, अरे यहाँ पर राजा थे राव जोधा के बाद फिर धीरे धीरे इनके पूरे वंश से चले आए। और ये क्या कर रहे हैं? झूले राजा रानी झूला खा रहे हैं झूला खा रहे हैं। और ये इसमें राजा रानी बैठे हैं राजा हुक्का पी रहे हैं। ये हमारा रॉयल टेंट है और इसमें ये छत में लगता है इसके चारों तरफ वॉल लगती थी। यहाँ पर बारिश कम होती थी तो खेती बाड़ी कम होती थी तो राजा ने रोजगार देने के लिए जोधपुर में एक कपड़े की फैक्ट्री का काम किया गया इसमें ये गलीचे बढ़ते थे। ये आई थिंक रानी की पोशाक महारानी की पोशाक है। काम किया गया मोबाइल में महारानी की कपड़ा बनाया गया इसमें गोल्ड्स है क्या? गोल्ड्स का काम किया गया। गोल्ड्स का काम है वहाँ। इसके अंदर 5 से 6 महीने लगते थे इस ड्रेस को बनाने के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए। आइए शीश महल देखते हैं। यहाँ जो हम देख रहे हैं ये राजस्थान का सबसे सुंदर अच्छा बंगला है। इसकी जो छत है लकड़ी की छत है। लकड़ी की छत के अंदर सोने को बना के लगाया गया है और इसके अंदर जो पेंटिंग की है फूल के ऊपर इसलिए इसका नाम फूल महल रखा गया। इसमें ये जो किला देख रहे हैं इसको गोल्डन पॉलिश का काम किया गया क्योंकि अंग्रेज वगैरह आ गए थे तो उस समय ये यहाँ पर लगाए गए। जिसका नाम था ईडर के एक राजपूत को बोल दिया जिनका नाम तखत सिंह था। तखत सिंह जी की उम्र 53 साल की थी और 53 साल की उम्र तक 29 साल की This is the view
to die for, truly. This is why this city is called as the Blue City of India, Jodhpur. This is the panoramic view of Jodhpur city. We were waiting for such a long time to witness this. और वर्ण मुखर्जी है वो बंगाल से हैं। प्रणब मुखर्जी, हाँ हाँ वो इंडिया के राष्ट्रपति था ना। राष्ट्रपति थे, कल उनके बच्चे आए थे घूमने के लिए। अच्छा, तो राजा साहब को मतलब उनके बच्चे तो बहुत जगह है, हाँ। जैसे ही यहाँ पे उनके लिए सब व्यवस्था कर और उनको बोला कि उन्होंने सर्किट हाउस में रुके, उनको बोला ये गज सिंह जी राजा जी कहाँ रहते हैं? ये उमेरकोट पैलेस में रहते हैं। फोटो है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक राजा थे जिनका नाम था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जब जामरुद में युद्ध कर रहे थे, तो जामरुद के युद्ध में वीरगति प्राप्त होती है और वीरगति प्राप्त होने के बाद जब ये समाचार औरंगजेब को पता चलता है तो उसको पता होता है कि मारवाड़ में कोई राजा, मारवाड़ का राजा बड़ा लगा। तो बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उस बालों को लेकर 30 साल जंगल चले गए। 30 साल तक औरंगजेब से ढूंढ नहीं पाता। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके शासन के लिए लोग लड़ने लगते हैं। तो अजीत सिंह जी और वीर दुर्गादास राठौर मिलते हैं, इस किले पे अटैक करते हैं। जोधपुर का शासन हमारे अजीत सिंह लेते हैं। तो ये उस समय की कहानी है। दिस इज़ द अकाउंट सेक्शन ऑफ द जोधपुर पैलेस, मेहरांगढ़ फोर्ट। ये होली चौक है जहाँ राजा रानी होली खेलते थे, एक दूसरे के कलर डालते थे, होली खेलते थे। अभी ये कमरा बहुत अच्छा था। इस कमरे का निर्माण यहाँ के राजा सूरसिंह ने किया था। सूरसिंह सेन सिंह राजा यहाँ बैठे थे। अब आपको पता है कि सामने 10,000 सैनिक है, लेकिन उनसे युद्ध में नहीं जीत सकते। तो उनके जो मंत्री उन्होंने अपना एक उनको यहाँ बैठक होती है। बैठक होने के बाद उनको आपका तलवार निकाले थे। तलवार निकालने के बाद उनको मनवार का फायदा होता है कि आपको कोई कुछ चीज़ ऑफर करेंगे, आप डायरेक्ट मना नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छा मिले जैसे करके शर्त लगा सकते हैं। ओपीएम वगैरह होती थी, फिर ऑफर आए जब तक आपके ब्लड में खून की एक भी बूंद है तब तक आप युद्ध करेंगे। तो इसके बाद 10,000 सैनिक है अपना सर पे किसी साफा बांध कर उसके युद्ध में तलवार उसके गदर पे रखी थी। उसके बाद हत्याने को छोड़ दिया। बाकी सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कोई मतलब मार ही नहीं सकता। इसमें यहाँ पर जो देख रहे हैं उनके सेवक बैठे हैं, आर्टिस्ट जो संगीत वगैरह डालते हैं। And this is the famous Chamunda Mata temple of Jodhpur city. And friends, you can park your vehicles very safely in this place. This is the designated parking space for Mehranggarh Fort. Guys, that's how we have completed the guided trip to the magnificent Mehranggarh Fort of Jodhpur. Do let us know how the video was. To see more such travel videos, please subscribe to our YouTube channel Musafir Huyaro 1985. Don't forget to like and share this video with your friends and families. Do take care of yourself guys. Happy traveling. Goodbye.